Benefits of supplier partnership: how to retain the customer, how to involve the customer, improve quality, reduce cost, प्रोडक्टिविटी को बेहतर किया जाता है, एफिशिएंसी को बेहतर करते हैं, मार्केट शेयर को बेहतर करते हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन इंक्रीज की जाती है और क्वांटिटीज इंप्रूव। जापानीज रिव्यू आपने करना है पर्टेनिंग के लिए। द जापानीज पर्टेनिंग कॉन्सेप्ट इज कैलरिस टू developing a long-term relationship with key supplier rather than having a short-term relationship with many suppliers. ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है, ट्रस्ट होता है, शेयर्ड विजन होता है, टू सेटिस्फाई द एंड यूजर इन द कॉमन गोल ऑफ बोथ द सप्लायर एंड द कस्टमर। सप्लायर सोर्सिंग में सोल सोर्सिंग होती है, ओनली वन सप्लायर फॉर द एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही सप्लायर रहता है, चाहे जो मर्जी हो जाए हमें उसी सप्लायर को मेंटेन रिटेन रखना है। This may be a forced to happen because of the patent, technical specification, raw material location, monopolistic supply. Multiple sourcing में for a single item having two or more suppliers. Single item के लिए दो या दो से ज़्यादा supplier भी हो सकते हैं, resulting in a better quality, better services at the lower cost. Single sourcing में use of one supplier to one item. एक सप्लायर जो है वो एक आइटम के लिए होता है। When several sources are available, leading to a long-term partnering relationship. Basis of supplier क्या है जी? Supplier selection में cost, quality, delivery, reliability आ जाती है, management compatibility, goal, congruence and strategy, direction of supplier performance. Stage in the supplier selection and evaluation में survey stage आ जाती है, inquiry stage, negotiation and selection stage, experience stage. The supplier should understand and appreciate the management philosophy of the organization. Supplier जो है have a stable management system है, should maintain the high technical standard and have the capability of dealing with future technological innovation. Supplier जो है वो आपको raw material provide करता है, parts देता है, required purchaser and those supply meet the quality specification. Supplier should have the capability to produce the amount of the production needed. Supplier should not breach the corporate secret. Supplier जो है वो easily accessible होता है in term of transportation and communication. The supplier should be sincere in implementing the contract provision. Supplier should have an effective quality system and improvement program, ISO QS 9000. The supplier should have a track record of the customer satisfaction and organization credibility. Supplier rating, also referred as a scorecard system, is used to obtain an overall rating of the supplier performance based on the quality, price, performance and production capacity. Objectives क्या हैं जी सप्लायर रेटिंग के? ये ओवरऑल रेटिंग ऑफ सप्लायर परफॉर्मेंस है, इंश्योर करता है आपके कंप्लीटर कम्युनिकेशन विद सप्लायर, प्रोवाइड ईच सप्लायर अबाउट द डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम फॉर करेक्टिव एक्शन एंड मेंटेन और इम्प्रूव द पार्टनरिंग रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द सप्लायर। अब एग्जांपल्स क्या हैं जी सप्लायर स्कोर कार्ड की? ये देखें उसमें लिखी हुई है कि लाइन रिटर्न है तो उसमें हम मैक्सिमम पॉइंट इतने देते हैं, एक्चुअल पॉइंट इतने और एक्चुअल पावर्स जो इतनी और एक्चुअल फोर्स इतनी। Three basic factors for successful supplier rating system. Internal structure to implement and sustain the जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इम्प्लीमेंट किया जाता है, सस्टेन किया जाता है रेटिंग प्रोग्राम को, रेगुलर और फॉर्मल रिव्यू प्रोसेस होता है और एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है फॉर ऑल द सप्लायर्स। रिलेशनशिप डेवलपमेंट में रेफर्स टू मेंटेनिंग द रिलेशनशिप डेवलपमेंट थ्रू द वेरियस टेक्निक्स discussed previously. For maintainability and growth of the relationship, the following key factors are considered. इंस्पेक्शन में 100% इंस्पेक्शन होती है, सैम्पलिंग की जाती है, ऑडिट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, चेक्स जो भी ट्रेनिंग वगैरह। टीम अप्रोच के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर सप्लाई टीम, तमाम फंक्शनल एरिया में उन्हीं के ऊपर टारगेट किया जाता है। रिकॉग्निशन की जाती है, कस्टमर कैन रिकॉग्नाइज द सप्लायर by non-monetary or monetary reward. Performance measurement, an important principle along with the customer satisfaction, employee involvement and continuous process improvement, supplier partnership are efforts to measuring the performance of the entire organization.
परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखना उन्होंने लिया हुआ है। सबसे पहले कस्टमर में नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट आपने देखनी है, वारंटी कंप्लेन देखनी है, सजेशन पर एम्प्लॉई आपने, नंबर ऑफ सजेशन इम्प्लीमेंटेड, परसेंटेज रिटर्न्स बाय कस्टमर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स को देखना आपने, टाइम टू रिजॉल्व द कंप्लेंट और मीन टाइम टू रिपेयर आपने, ये सारी चीज़ें एज अ इंडिकेटर और डिटर्मिनेंट आपके यूज़ की जा रही है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। दूसरा बेटा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में आपने प्रोडक्टिविटी को देखना है, आउटपुट और इनपुट, इनके रिजल्ट क्या निकलते हैं, वो जो आउटपुट निकल रहा है उसकी कॉस्ट क्या है वहाँ पे जनरेट हो रही है। फिर उसके बाद लेबर प्रोडक्टिविटी को आपने देखना है, रिजल्ट्स और लेबर कॉस्ट में, कैपिटल प्रोडक्टिविटी में रिजल्ट और कैपिटल कॉस्ट आ जाती है, मटेरियल प्रोडक्टिविटी में रिजल्ट्स ओवर मटेरियल कॉस्ट आ जाती है, और इफेक्टिवनेस में एक्चुअल रिजल्ट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ जाती है। एफिशिएंसी हम कॉस्ट के साथ ही मेजर करते हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस को एक्चुअल कॉस्ट के साथ मेजर करते हैं, क्या वो जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद फेलियर रेट आ जाता है बेटा, नंबर ऑफ फेलियर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है इंस्टेड, और अवेलेबिलिटी को देखा जाता है बेटा, एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम जो होता है, वेटिंग टाइम और लीड टाइम फॉर द प्रोडक्ट डिवाइड। नंबर 3 पे सप्लायर्स बेटा, इसमें सर्विस रेटिंग आ जाती है, ऑन टाइम डिलीवरी, क्वालिटी परफॉर्मेंस, एसपीसी चार्ट बनाया जाता है, बिलिंग एक्यूरेसी हो जाती है, एवरेज लीड टाइम होता है, जस्ट इन टाइम डिलीवरी टारगेट आ जाता है। नेक्स्ट है बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट टाइम और टू अ मार्केट होता है, टाइम नीडेड टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, डिज़ाइन चेंजेस ऑर्डर, डिज़ाइन की जाती है जो भी चेंज आती है ऑर्डर, कॉस्ट एस्टिमेटिंग एरर आ जाती है, और परसेंटेज ऑफ द सेल्स फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट, किसी भी नई प्रोडक्ट के लिए जो परसेंटेज है उसकी सेल्स को दे दें। एफिशिएंसी हैज बीन डिफाइंड एज डूइंग थिंग्स बेटर एंड इफेक्टिवनेस एज डूइंग थिंग्स बेटर। पांचवा ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या देखा जाता है, पर्सोनल टर्नओवर देखा जाता है, एब्सेंटीज देखी जाती है ड्यू टू इलनेस, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इंडेक्स देखा जाता है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग, नंबर ऑफ ट्रेनिंग आवर्स देखे जाते हैं पर एम्प्लॉय, एक्टिव टीम को देखा जाता है, नंबर ऑफ सजेशन और ग्रीवेंसेस, सेफ्टी इंसिडेंट्स आ जाते हैं, और गवर्नमेंटल इंसिडेंट्स वगैरह को देखा जाता है। मार्केटिंग और सेल्स में क्या आता है, सेल्स ग्रोथ, मार्केट ग्रोथ को देखा जाता है, डिलीवरी कंप्लीटेड, सेल एक्सपेंस टू रेवेन्यू, न्यू कस्टमर कितने आए हैं आपके पास, सेल इनकम जो नंबर ऑफ सेल्स पीपल में होती है, ऑर्डर एक्यूरेसी, और रेवेन्यू ग्रोथ को देखा जाता है, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ टाइम, ऑर्डर एंट्री, और बिलिंग एक्यूरेसी और इनवॉइसिंग द डैमिंग philosophy क्या है जी, क्रिएट एंड पब्लिश द एम्स एंड पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिलॉसफी यही है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्ट करने का पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन वजूद में क्यों आई है, क्या उसकी एग्जिस्टेंस है जिस चीज़ से वो जो है। लर्न द न्यू फिलॉसफी, अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द इंस्पेक्शन, स्टॉप अवॉइडिंग द बिजनेस बेस्ड ऑन प्राइस alone, improve the constantly and forever the system, इंस्टीट्यूट किया जाता है ट्रेनिंग को, टीच एंड इंस्टीट्यूट द लीडरशिप, ड्राइव आउट फियर एंड क्रिएट अ क्लाइमेट फॉर इनोवेशन जो है, ऑप्टिमाइज किया जाता है एफर्ट्स ऑफ द टीम एंड ग्रुप एंड स्टाफ एरिया, एलिमिनेट द एक्सॉर्टेशन फॉर द वर्क फोर्स, एलिमिनेट किया जाता है न्यूमेरिकल कोटाज फॉर द वर्क फोर्स, रिमूव बैरियर दैट रोक द पीपल ऑफ प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, इनकरेज किया जाता है एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवन, टेक एक्शन टू अकॉम्प्लिश द ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका बेटा है, उसके ऊपर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, और उन स्टैंडर्ड्स में हम किस तरह जो है अपने सप्लायर को, कस्टमर को रिटेन रख सकते हैं, किस तरह हम जो है उनको आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट बेटा टॉपिक है इसमें इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के, जो आपके इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड स्टैंडर्ड्स हैं, तो किसी प्रोडक्शन फर्म में इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स में क्या रोल प्ले करते हैं, उनमें किस तरह हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, कैसे चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, किस तरह हम जो है उनको ग्लोबल मार्केट प्लेस में जो है उस कंपटीशन में हम बूम की तरफ लेके जा सकते हैं। इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट फर्म्स फेस अ सेट ऑफ हाईली स्पेसिफाइड challenges,
इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी लैंडस्केप और इंक्रीज करता है कंपटीशन को इन द ग्लोबल मार्केट. No matter the size of your organization or specific industry you serve, you can benefit from the criterion to one or several quality management system standards. ISO International Standard for Organization certification जो है gives you a competitive edge when entering in the new market as it represents a known and trusted standard of the quality. Implement किया जाता है ISO certified manufacturing और engineering management system को can also help you. इसमें शॉर्टन साइकिल टाइम होता है, इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी और अचीव किया जाता है कंप्लाइंस को विद न्यू रेगुलेशन फास्टर नई पॉलिसीज के साथ. रिकॉग्नाइज इन योर फील्ड एज एन एनवायरमेंटल लीडर, streamline your supply chain and reduce your reliance on the fossil fuels, enhance the awareness and improve your overall security and safety posture. Engage किया जाता है स्टाफ को at all level and secure the executive level participation in the quality management goals. Together, these advantages make for stronger organization that can effectively use a sophisticated management tool to grow and succeed even in an uncertain economy. Drive efficiency across your organization में standardizing your method of working is critically important to ensure the change is managed. Risk minimize किया गया है. ये important है for a variety of reasons, including the need to be conscious of the effect of these changes on the environment and health and safety. मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड जो है वो ISO 9000 से लेके ISO 27001 तक आ गए and other ensure a consistency of the approach that drives the efficiency forward. ISO 9000 पहले भी हम देख चुके हैं जब लेक्चर हमने इस बुक को स्टार्ट किया था पढ़ना. ISO 9000 is one of the most recognized management standard in the manufacturing industry, an important certification for any organization concerned about improving the quality control. It is a critical part of comprehensive manufacturing management system and can have a significant benefit for engineering firm too. ISO 9001 helps streamline process, improve business performance, and drive efficiency in a continuous improvement cycle. The most recent version of ISO 9001 was published in 2015. ये bring करता है standards को in line with the directiveness set out in an annex SL high level of the document and making it easier to leverage existing policies. इसमें toward the certification आ जाती है with specified specialized quality management systems such as ISO 14001. ISO 14001 ISO 14001 standards cover an organizational environmental management policies from a long-term sustainability and carbon management to day-to-day waste reduction and resource allocation. For engineering and manufacturing firm, environmental management is of the critical importance and a key component of the corporate social responsibility. Organizations that are proactive about the environmental management are better positioned to reduce the cost and waste across the supply chain. अब कह रहा ISO 14001 में क्या कहा गया कि ये डे टू डे जो वेस्टेज निकलती है उसको मिनिमाइज किया जा सके, रिसोर्सेज को प्रॉपरली एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को देखा जा सके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल किया जा सके और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो है वो बेटर पोजीशन में होती है अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए और वेस्टेज को अक्रॉस द सप्लाई चेन. ये करंट और फ्यूचर रेगुलेटरी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है और मोर प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल है ओवर द टाइम. ISO 5001 यानी 50001 जो है ISO 50001 सर्टिफाइड मैनेजमेंट सिस्टम है. फॉर्मुलाइज योर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मुलाइज करता है, एनर्जी मैनेजमेंट को देखता है, पॉलिसीज को रिड्यूस करता है, कार्बन फुटप्रिंट में ऑपरेटिंग कॉस्ट को. ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है इन्वॉल्व लोकेटिंग गैप इन योर करंट एनर्जी मैनेजमेंट पॉलिसी, आइडेंटिफाई करता है वे टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ओवरऑल. दिस इज डन बाय एस्टैब्लिशिंग एन एनर्जी यूज बेसलाइन, conducting a management review and performing ongoing efficiency audit.
50,001 especially useful है for engineering and management organization. High overhead cost और complex working requirement है. ये closely related है to ISO 14001 के, और making the process of certification simpler for any organization that already has an effective environmental management system in the place. और SARS 18,001 जिसको हम ISO 45,001 भी बोलते हैं, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ को बेहतर करता है, सेफ्टी को इम्पोर्टेंट गोल में इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट सिस्टम में, और ये एक मैनेजमेंट लेवल फ्रेमवर्क है फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड सेफ्टी इन योर ऑर्गेनाइजेशन. Hallmark of an effective health and safety management system include clear and measurable objectives and structured approach to risk assessment around the occupational health and implementing the management system. With these characteristics can lead to a fewer on-the-job accident and less productivity loss due to injury and illness. Last one is your ISO 27001. Information security जो है is a topic of the critical importance to all the organization. Not all the cyber attacks are high profile leaks involving a major organization. Small and medium sized business in all the industry are equally likely to become a victim. 27,001 एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है फॉर मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ डाटा ब्रीचेस और अदर ऑनलाइन अटैक. इम्प्लीमेंट किया जाता है ISO 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैन हेल्प सेफगार्ड योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, maintain the regulatory compliance and ensure the business continuity should be an incident occur. Like all ISO standard 27,001 जो है is based on continuous improvement cycle. एक टेक्नोलॉजी और कल्चर चेंज को देखा जाता है. रिस्क अगेंस्ट योर डाटा इवॉल्व. ISO 27001 provides an adoptable framework for keeping your critical assets safe. और ये जो है खासतौर पर ये सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर होता है. ये ISO स्टैंडर्ड की तरह का ही होता है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी की भी इम्प्रूवमेंट आ जाती है, और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है हम इसको आगे फर्दर और बेहतरी की तरफ ले आते हैं, ताकि हम जो है इसको मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट इसमें कर सकें. और ये ISO जो स्टैंडर्ड्स हैं ये आगे डिफरेंट मोड में भी आपके पास पाए जाते हैं कि आपने किस तरह इनको जो है इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह आपने इनको ISO स्टैंडर्ड्स हैं इनको बेहतरी की तरफ लेके जाना है. और ये जो ISO स्टैंडर्ड्स हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल करते हैं बेटा, और हर स्टैंडर्ड जो है उसमें कह लें कि आपका जो है मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में उन्होंने बताए हुए हैं कि आपने ये स्टैंडर्ड यूज़ करने हैं तो इससे ये इम्प्रूवमेंट आएगी. इन स्टैंडर्ड्स को आपने इस रूल्स के लिए अप्लाई करना है. जिस तरह हमारे एक्ट होते हैं ना लॉ, ये उनके लिए भी यूज़ किया जाता है. और यहाँ पे उसने एक देखें ये जो है ISO 45,001 जो है उसको फर्दर एक्सप्लेन किया. उसने कहा जी ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो रिक्वायरमेंट जो आपकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी को तो बताता है, ये गाइडेंस भी देता है और ऑर्गेनाइजेशन वांट को भी देखता है जो वर्क रिलेटेड इंजरीज और इल हेल्थ वगैरह आ जाती है. A lot of people die each day from work related accident or disease. Burden of A lot of people die each day from work related accident or disease. Burden of occupational injuries होता है, diseases is significant both for employees and wider economy. Workplace injuries होती हैं, health issues आ जाते हैं बेटा. Organization with a higher number of workplace injuries आ जाती हैं और health concern आ जाते हैं. ये कैप्चर करते हैं आपके शेयर ऑफ ग्रोइंग मार्केट ऑफ कंज्यूमर. कंसर्न किया जाता है विद ओवरऑल रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड में इम्प्रूव की जाती है प्रोडक्टिविटी को, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल वेल बीइंग बाय एड्रेसिंग कंसर्न दैट कुड लीड टू अ नेगेटिव आउटकम. स्ट्रॉन्ग ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है. नंबर ऑफ इंसिडेंट है डाउन बाय रिड्यूसिंग एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ लिंक टू द वर्कप्लेस. Employees feel that their needs and safety are being taken into the account, may help avoid the legal cost and may even reduce the insurance cost better.
उसके बाद ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी के बारे में पूरा स्टैंडर्ड है, जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट और वर्क प्लेस इंजरीज आ जाती हैं, वर्कर इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाते हैं, फाइन्स और डाउन टाइम फॉर द इंजर्ड वर्क और डैमेज इक्विपमेंट आ जाते हैं। ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, लेस टेंजिबल होते हैं, और वर्क प्लेस इंजरीज ऑफ्टन लीड टू अ लो मोरल, टर्नओवर, reduced productivity, and difficulty complying with the regulation could lead to a negative outcome. Who are the intended user of the standard? The simple answer is all organization is intended to be applicable to any organization with employees regardless of its size, time, and nature. Every organization has the people working on its behalf or who may be affected by its activity, then using a systematic approach to managing the health and safety will bring benefit to it. The standards can be used by small, low risk operations equally as well as by high risk and large complex organization. ISO 14000 में हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड होती है अप्रोच, इसमें एनेक्सेस होते हैं एक्सेल जो है इज अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट सिस्टम having some core language or common terms for it. It's designed to make it easier to implement the multiple management standards. In developing the standard, consideration has been given to be the content of the other international standard. इसमें औसास 18001 आया था, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में औसास गाइडलाइंस भी आ गई थी और नेशनल स्टैंडर्ड भी थे, एज वेल एज ILO इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड एंड कन्वेंशन जो है। क्लॉजेज में स्कोप इसका देखा था हमने, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, टर्म्स एंड डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप एंड द वर्कर पार्टिसिपेशन, प्लानिंग को देखा था, सपोर्ट को, ऑपरेशन को, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट वगैरह। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ISO 14001 help organization to minimize the risk of the harm to all these working under their control. We provide a platform for the continual improvement in the OHS performance. Integrate किया जाता है OHS within an organization overall business management system. डिफरेंस क्या है जी फॉर्मर और लेटर में? वाज अ ब्रिटिश बेस्ड स्टैंडर्ड है जहाँ पे डिज़ाइन किए जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। फ्रेमवर्क फॉर्मर वाज बेस्ड ऑन reactive planning, whereas ISO 14000 is based on proactive planning. Safety or health was the responsibility of safety management personnel in former standard. Safety or health is the responsibility of the leadership. A key benefit of the new standard is that it includes the high level structure which align your OSAS management system with other ISO management system your organization has in place. This could help streamline processes, deliver the efficiencies, saving time and money, one global occupational health and safety system for all business for all sides. Comply किया जाता है with regulatory and other compliance requirement by addressing the organizational risk and return systematically. Improve the employee safety by creating safer working condition or by reducing workplace risk. Achievement की जाती है recognition for having an international standard, found commitment to worker occupational health, and safety influence the customer on social responsibility ground. Driving to improve the cultural change, thus improving the performance in a structured manner. Improve productivity by reducing the workplace injuries and ill health and reducing the downtime and the cost of the disruption to operation. Protect करवाया जाता है your employees and reducing the overall cost of incident, thus reducing the absenteeism and employee turnover rate. Potential for reducing the cost of the worker insurance premium. सक्सेस फैक्टर में बेटा टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप आ जाती है, कमिटमेंट डेवलपमेंट आ जाती है, एंड प्रमोट अ कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट्स द OSAS मैनेजमेंट सिस्टम. पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर है, इफेक्टिव प्रोसेस फॉर कम्युनिकेशन है, एलोकेशन ऑफ द necessary resources है, clear OSAS policies compatible with the overall strategic objective and direction of the organization. अब ये हैपन होता है बेटा, अंडरस्टैंड करते हैं हम ISO 45000 रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द गैप, सर्टिफिकेशन बॉडीज कैन हेल्प, व्हाट टू डू नेक्स्ट में रेज अवेयरनेस, श्योर कमिटमेंट और अपस्किल एज नीडेड जब भी हमें उनकी जरूरत पड़ती है। ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है उसने। देखें उसने क्या किया हुआ है, सबसे पहले जो है उसने प्रोडक्ट और सर्विसेज दी हैं। प्रोडक्ट और सर्विसेज में
सबसे पहले 4 वही पॉइंट है, प्लान, डू, चेक और एक्ट। एक्ट के बाद फिर प्लानिंग, लीडरशिप। लीडरशिप के बाद जो है वो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद फिर उसको सपोर्ट किया जाता है और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। परफॉर्मेंस को वैल्यूएट किया जाता है, अगर कहीं पर ड्रॉबैक होता है तो वहाँ पे उसको इम्प्रूव किया जाता है। बेटा नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ रेलिवेंट इंटरेस्ट आ जाता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया जाता है। रोल ऑफ लीडरशिप इन OHSMS, taking overall responsibility and accountability for the protection of the worker, work-related health and safety, ensuring that OSA's policy and related objectives are established and are compatible with the strategic direction of the organization. Ensure करवाया जाता है integration of the OSA's management system, process and requirement into the organizational business process. Ensure the resources needed to establish, implement, maintain and improve the management system are available. और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर होती है, वेयर दे एग्जिस्ट वर्कर रिप्रेजेंटेटिव यूजिंग कंसल्टेशन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टेकल और बैरियर टू पार्टिसिपेशन। पॉलिसी क्या है जी, इसमें 5 बेसिक कमिटमेंट होती हैं। प्रोवाइड सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द वर्क रिलेटेड इंजरी। सेफ और एप्लीकेबल है बेटा। तो इसके बाद कंट्रोल करता है रिस्क यूजिंग द हायरार्की ऑफ कंट्रोल, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ द एहसास मैनेजमेंट सिस्टम टू एनहांस द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, और एट द एंड इसकी पार्टिसिपेशन को देखा जाता है। हज़ार्ड्स में हाउ ग्रेट द चांसेस दैट समवन विल बी हार्म्ड बाय द हज़ार्ड, जिसमें एनीथिंग दैट कैन कॉज हार्म, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी और लीडर्स वगैरह आ जाते हैं। वाटर, गैसोलीन और ये नुकसानदेह हैं आपके ये हज़ार्ड जो हैं। रिस्क जो है वो रिस्क बेटा जंपिंग करता है विदाउट नोइंग हाउ टू स्विम, लाइटिंग अ मैच और फिर टेक्सिंग वगैरह को चेक किया जाता है।